में देखा था तो हमने नन्स इक्वेशन देखा था। ओके, अगर कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी है। ओके, तो मुझे बताएगा इसका जो है तो नन्स इक्वेशन क्या होगा। ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाय एन log c raised to c d raised to d a raised to a b raised to क्या था बच्चों, b आता है, yes or no? है ना, आंसर देना पड़ेगा ना, इसीलिए तो यहाँ बुलाया है, वरना मैं ना रिकॉर्ड करके भेज दूं आपको। ओके, आपको अनम्यूट होके बोलना है, टेंशन मत लो। ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग सी सी डी डी ए रेज टू ए बी रेज टू बी है, ठीक है। So in last lecture we have seen how we can just find out this one, okay, E cell, if we are provided with that concentration of the solutions. But have you ever think about the equilibrium constant? Suppose your reactant and product are in an equilibrium. So at an equilibrium, K is equal to C raised to C, B raised to D, A raised to A and B raised to B, and that E cell will be 0 because now no net during that equilibrium, no net exchange of electron will be there. वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज नहीं होंगे बच्चों, yes or no? So at that time what I can say here, E cell will be 0.01. So now this, like suppose 0 is equal to E0 cell minus 0.059 by n log K. It can be Kc or Kp. So finally I can write like this. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि E0 cell is equal to 0.059 by n log K. So now from this equation only, I can just derive, now through this equation only I can derive value of K. Is it clear what I did? This one was the reaction A plus BB gives you a CC plus DD. So these nuns in last lecture we have seen we can write nuns equation like this, yes or no? Okay, so here this one is K. So what I write, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log K, or I can say CCDDABB. Now at equilibrium, E cell will be 0. The value of E cell will be 0. So what I wrote, E cell is equal to 0.0 volt I have written. Now, as you are knowing that if E cell is equal to 0.0 volt, so 0 is equal to E0 cell minus 0.059 by n log K. So what I did, I make E0 cell as a subject. So now E0 cell is equal to 0.059 by n log K will be there. Yes or no? So now log K will be there. Okay. So this is the equation through which E0 cell is equal to 0.059 by n log K. It can be either Kc or Kp as you have seen it in an equilibrium chapter. Okay, so now find out, if question is like this, find out equilibrium constant K for Daniell cell, or I can say galvanic cell. जहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है Zn slash Zn plus 2 aqueous. Okay,
aqueous डबल स्लैश Cu+2 aqueous स्लैश Cu सॉलिड। तो इसके लिए मुझे अगर क्या ढूंढना है भाई, के की वैल्यू ढूंढने तो मुझे पता है E0 सेल इज इक्वल टू 1.11 इज इक्वल टू 0.059 बाय n की वैल्यू 2 आएगी log k। okay, so now what exactly we will do, okay, so here log kc की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखते हैं। log k is equal to 1.1 into 2 divided by 0.059। चलो log k कितना आ रहा है, आंसर दो मुझे फटाफट से। RT by NF आता है, यहाँ पे n इंटू एफ आता है, वो तो रह ही गया हमारा 96500 है ना, 96500 आता है ना RT by NF। या we have done it, no we have already done it। what is the answer, tell me बच्चों। I am just waiting। चलो भाई नीतीश आंसर क्या आएगा बताओ। 37.288। 37.288। एक काम करते हैं 37.280 रखते हैं, ठीक है, या ये सुनो। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब इस लोग को मैं इसको ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ। एंटी लॉग हो जाएगा सर। सो k इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, मुझे तो एंटी लॉग देखना नहीं आता, क्या आप बच्चों को आता है एंटी लॉग देखना? यस सर। ओके, तो बताएगा कैसे देखते हैं। ये जो 37 है ना उसको 10 कर देंगे देखिए और जो पॉइंट के आगे जो भी है, पॉइंट एंटी लॉग में 37 के आगे पॉइंट के आगे जो भी है उसको 10 पावर कर देना। और 28 का 8 में देखो आप, 28 का 8 में देखो आप 1.941। नहीं पीछे 4 डिजिट होंगे, 28 8 एंटी लॉग में देखना आप। यस सर 1941। 1941। फिर यहाँ पे है ना देखो कि लॉग होता ना तो 0 पॉइंट लिखते हैं, लेकिन एंटी लॉग है तो 1 पॉइंट लिखते हैं। सो आई थिंक इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव डन इट नाइसली, यस और नो। So here we just got k. So what I just want to say, with the help of Nernst equation, even we can just find out equilibrium constant k, value of equilibrium constant k, we can just find it out। ये होती है बात। चलो now is it clear, yes or no? हाँ या ना बोलो। Yes। Okay। So ये चीज याद रखो, E0 cell is equal to 0.059 by n log k। ये चीज आप याद रखना है, तो इससे हम लोग k को निकाल सकते हैं। ओके चलो, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है टेक्स्ट बुक में, एक एग्जांपल नंबर 3.2, ठीक है। एग्जांपल नंबर हम कौन लिखने वाले अभी, 3.2। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, उन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, Cu solid plus 2Ag plus aqueous gives you a Cu plus 2 aqueous plus 2Ag solid। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, इन्होंने ये देखा इसका E0 सेल दिया हुआ है 0.46 वोल्ट है। सो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ढूंढना है। चलो कौन सा फॉर्मूला है ना अपने पास, ऊपर देख ही सकते हो आप तो, है ना। यस और नो? यस सर। चलो बताओ कितना है वो अच्छे से बताओ। सर E0 cell equals to 0.059 upon 2 log Kc equals to 0.46 volt। ओके तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.46 इज इक्वल टू 0.05। अब n कितना लिखूं, यहाँ पे आपको देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, यस और नो, इनटू लॉग क्या आएगा बताओ।
इंटू लॉग क्या आएगा, के डायरेक्टली लिख देते ना अभी इसको, तो के जो भी है ये सब का के आ जाएगा। चलो अब कौन मुझे बताएगा मैं क्या कर सकता हूँ। लॉग की वैल्यू बताओ। चलो लॉग की इज इक्वल टू कितना आ रहा है, लॉग के इज इक्वल टू बता दो बच्चों। चलो फटाफट से बच्चों बता दो लॉग के इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना 15.59। सबका यही आंसर आ रहा है, देखो तो आ रहा है 15.59। अब क्या करेंगे, के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ 15.59। यस और नो, हेलो बच्चों, यस और नो बताओ। एंटी लॉग कितना आ रहा है बच्चों, 15.59 आ रहा है। चलो पॉइंट के आगे की जो वैल्यू है, पॉइंट के आगे 15 है तो उसको 10⁻15 करो। फिर आप एक काम करो, देखो साथ में करते रहना, सिर्फ देखने रहने से कोई फायदा नहीं है, साथ में करते रहना है। ये 59 का जीरो में देखो, चलो आप कितना आंसर है बताओ, 59 का जीरो में एंटी लॉग 3.890। कितना है बच्चे, 3.890। ये हो गया आपका की वैल्यू आ गई। यस और नो, लेकिन सर टेक्स्ट बुक में 3.9 आ रहा है क्योंकि उन्होंने है ना 0.60 लिया है। हाँ इट्स ओके। यहाँ ये देखो इसमें तो बहुत वेरिएशन, हमें तो देखना होता है कि कौन सी चीज है, ठीक है, मतलब वेरिएशन बहुत आएगा। अगर आप यहाँ पे 6 ले लोगे, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये हमने क्या लिया, 2 डिजिट लिए हुए, समझे बात। सर 15.593 लोगे ना तो आ जाएगा। अरे हमें लाना नहीं है, हमें समझना है कैसे होता है, वो तो हम भी समझते हैं कि यहाँ पे अगर डिजिट को चेंज करोगे, एक ज्यादा डिजिट लोगे तो और आएगा। जैसे मेरा वेट 84.2 kg है, वो छगन दादा ने मुझे वेट करके दिया, लेकिन अगर मगन दादा के वहां पे वेट करोगे तो 84.213 किलोग्राम है, समझे बात आप। वो तो एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट है, आप कितने एक्यूरेट हो। तो आप अगर यहाँ पे ज्यादा लोगे तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा, दैट्स ऑल। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आप सबको। यस सर। तो वो अगर आप यहाँ पे पॉइंट में डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो बात कि डिफरेंस तो आने ही वाला है, दैट्स ऑल। चलो अब हम बात करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, जो पुराने सिलेबस में हुआ करता था कि कंसंट्रेशन सेल था, मीन्स क्या पता है, वो लोग एक काम करते थे, यहां पे भी एजी का सॉल्यूशन रखते थे, इस दोनों इलेक्ट्रोड सेम, सपोज दोनों ओर जिंक है तो दोनों ओर जिंक, दोनों ओर कॉपर है तो दोनों ओर कॉपर रखते थे। सपोज दोनों ओर कॉपर के है, अब बात ये बनती थी, यहाँ पे वो क्या करते थे, कॉन्सेंट्रेशन सेल में वो क्या करते थे, यहाँ पे जो है वो 2 मोलर है और यहाँ पे वो 6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, सब चीजें सेम, बट द डिफरेंस इज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसकी 2 मोलर कंसंट्रेशन होगी, इसकी 6 मोलर कंसंट्रेशन होगी। और आपको पता है रिएक्शन कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 4 मोल पर लीटर हो जाए और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। यस और नो, है या ना। भाई नीतीश कोई आंसर दो यार, मानसी बहन तो एक आंसर Yes, sir. आलो तो मने मजा आवे यार, अदरवाइज आई एम Yes, गेटिंग sir. बोर्ड। मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में तो है ही नहीं है, ठीक है, अदरवाइज वीडियो बनाता तो नहीं चलाता, तो फिर टेक्स्ट बुक पे ही जाता। आप समझो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं, चलो अर्चिता किसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल,
कि जिसमें दोनों साइड इलेक्ट्रोड सेम है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 मोलर बढ़ने की ट्राई करेगा और 6 मोलर कम होने की ट्राई करेगा। तो अगर इसको कम होना है तो यहाँ पे डिपॉजिट होना पड़ेगा, और इसको बढ़ना है तो यहाँ पे सॉल्यूशन में Cu+2 को एंटर होना पड़ेगा। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है, whose concentration is less, वो जाएगा ऑक्सीडेशन में। और उससे क्या होता होगा मैं आपको बताता हूं। उससे क्या होता होगा, 2 मोलर है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता होगा और वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो जिसकी कंसंट्रेशन लेस है वो एनोड है, और कंसंट्रेशन इज हायर। देखो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है तो ज्यादा कॉपर है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होने की ट्राई करेगा, इस इलेक्ट्रोड पे। कंसंट्रेशन इज हाई, is higher, then reduction will occur। चलो रिडक्शन कहाँ पे होने वाला है वो भी बता दो मुझे, चलो फटाफट से। रिडक्शन कहाँ पे होने वाला है वो भी बता दो। तो रिडक्शन कहाँ पे होगा बच्चों, कैथोड। यस। और रिडक्शन कहाँ पे होने वाला है बच्चों, अच्छे से बता दो। तो वो रिडक्शन होने वाला है कैथोड पे। ये आपका आ गया एनोड और ये आपका आ गया कैथोड, दैट्स ऑल। चलो हो गई बात। तो इन दोनों में से एक धीरे धीरे क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे देखो एक चीज और भी याद रखो, E0 सेल विल बी 0.34 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू 0.01। अरे भाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 हर बार 0 ही होगा, पता है क्यों? इन दोनों का अगर आप लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो तो दोनों जगह सेम ही है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अरे यार वो दोनों सेम ही है, 0 ही आंसर आएगा। फिर से एक बार, यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तब आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log एनोड पे जो है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे CC लिखता हूँ, concentration at anode divided by concentration at cathode, ये होता है। अब देखो फॉर कंसंट्रेशन सेल E0 cell is equal to 0.01, so E cell is equal to minus 0.059 by n log concentration of anode divided by concentration of cathode। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे इनका डिफरेंस ज्यादा होगा, ये 2 मोलर है और ये 6 मोलर है, सपोज ये 1 मोलर हो और सपोज ये 1 मोलर है और ये यहाँ पे 7 मोलर है, तो जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा ई सेल बढ़ेगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन का गैप बढ़ेगा, जैसे ऑस्मोट इक्वेशन में हुआ करता था ना, उसी तरह सेम यहाँ पे भी ऐसा है। अगर इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है तो ई सेल भी ज्यादा होगा। एक बात में आप देखो, ये बात ये नोट डाउन कर लो आप लोग, ये वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से आप क्या कर दोगे बच्चों, नोट डाउन कर लोगे बच्चों अच्छे से, ठीक है? यस और नो, कर लिया ये नोट डाउन आपने, है ना? चलो यस बोलो, हर बच्चा एक साथ बोलेगा यस सर, नोट डाउन कर लिया तो मैसेज करते हैं यस सर, भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 3 कंसंट्रेशन सेल है,
सपोज ये CuSO4 की ही है और यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 है दोनों में, जो हमने लास्ट 2 मिनट पहले देखा है। सपोज ये दोनों CuSO4 है, इसको हम लोग बोलते हैं E1, इसको बोलते हैं E2 और इसको बोलते हैं E3। आप इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा वो बताओ। E2। यस, E2 जो है वो सबसे बड़ा होगा। फिर कौन आएगा वो बताओ। E1 और सबसे छोटा होगा और E3 होगा। E3। या E3 में क्या होगा पता है, देखो आपने क्या किया, हर बार एनोड की कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए थी, कम, लेकिन यहाँ पे एनोड की कंसंट्रेशन कैसी है देखो तो आप, ज्यादा है। सो E3 वैल्यू इज नेगेटिव। ये जो है वो वैल्यू कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। दूसरा, डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है ना, सो E3 इज इक्वल टू माइनस E2 आएगा। ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हो फिलहाल इस टॉपिक के लिए। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, दोनों में डिफरेंस तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपने लेस वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला एनोड है तो बात सही है, लेकिन आपने ज्यादा को एनोड कर दिया तो दिक्कत नहीं, आपने गलती ये कर दी, ये एनोड था और ये कैथोड था, लेकिन आपने क्या किया, इसको एनोड लिया और इसको कैथोड लिया, तो टेंशन मतलब आंसर तो आएगा, सेम आएगा, लेकिन वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस। अगर माइनस वैल्यू आ रही है तो आपको समझ जाना है कि कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा है उसको आपने एनोड ले लिया है। समझे बात, यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी, लेकिन अगर आपने इसको एनोड लिया है तो वैल्यू ओके है, लेकिन अगर आपने इसको एनोड लिया है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वैल्यू यहाँ पे कैसी रहती है बच्चों, माइनस रहती है। याद रखना ये चीज अच्छे से। फिर से एक बार रिपीट करवाता हूँ, जैसे डिफरेंस बढ़ा तो E2 इज ग्रेटर देन E1। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिला इन दोनों में डिफरेंस सेम है, लेकिन आपने इसको एनोड बोला जबकि कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर आप एज एनोड ट्रीट कर रहे हो तो इन दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन ये वाला जो है माइनस में आएगा। सो E3 इज इन अ माइनस और उसकी वैल्यू कितनी होगी, E2 की जितनी ही होगी। सो E3 इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, E2 आ जाएगा। दैट्स व्हाट। चलो ये बात क्लियर होगी आपकी, यस और नो। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड आउट चलो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो वो कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रोकेमिकल गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, फ्रॉम दैट नन्स इक्वेशन we can find out, from Nernst equation we can just find out delta G। कैसे, आप सोचो, डेल्टा G इज इक्वल टू, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E07। एंड दूसरी चीज, नाउ E0 cell is equal to 0.059 by n log k। ओके, तो हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं जो हमने 11th में पढ़ा था, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln k। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log k। इस इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, इस इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा G0 के साथ k का भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और डेल्टा G0 E0 सेल से भी निकाल सकते हैं। सो इन स्टैंडर्ड 11 यू हैव सीन दिस बोथ इक्वेशन। अच्छे से याद करो और मुझे बताओ हाँ या ना। फिर से एक बार बताता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता ही है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF सेल, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल हो जाएगा बच्चों, यस और नो, आया ना। ओके, अब जो हम देखने Yes। वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं कि भाई डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log k।
अगर आपको E0 सेल दिया गया है तब भी आप की ढूंढ सकते हैं, यहाँ से भी E0 सेल से डेल्टा G0 निकालो, वहां से की निकालो। तो अच्छे से नोट डाउन कर लो ये दोनों के दोनों। चलो फटाफट से कर लिया ये नोट डाउन? Yes, sir. ओके, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले बच्चों? एग्जांपल्स। तो उससे पहले काम करते हैं, हम लोग रिज्वाइन करते हैं। ओके, मीटिंग को रिज्वाइन करेंगे सभी बच्चे। सो प्लीज डू इट नाउ।